Today we will continue with the properties of monosaccharides. The fourth property of monosaccharide is the formation of deoxy sugars. When the oxygen of a hydroxyl group is removed, this is the hydroxyl group. When its oxygen is removed in a monosaccharide, it leaves behind a hydrogen ion and it is formed a deoxy sugar. 2-deoxy D-ribose is derived from D-ribose. D-ribose हमें पता है राइबोस शुगर जो है वो मेनली ह्यूमन बॉडी में RNA में प्रेजेंट होती है, while deoxy sugar is mainly present in the DNA. This is the structure of deoxy sugar and deoxyribose and D-ribose. We can see here that from carbon atom number 2 of D-ribose, this is the carbon atom number 2, this oxygen is removed, leaving behind the CH2 group. So it forms 2-deoxy 2. Why it is called 2? Because at carbon atom number 2 there is removal of oxygen and deoxyribose, which is an aldopentose, is formed and it is present in the DNA. The substitution of hydrogen for the hydroxyl group at C6 of galactose and mannose produce L-fucose and L-rhamnose respectively. इसका क्या मतलब है कि अगर हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, जहाँ C2 पे की थी वहाँ 2-deoxyribose बन गया. अगर हम मैनोज में C6 पे इसको निकाल देंगे तो ये ग्लैक्टोज का फ्यूकोज बन जाएगा, जबकि मैनोज का L-rhamnose बन जाएगा. L-fucose is found in complex oligosaccharides and it is a component of like glycoprotein and glycolipids, while L-rhamnose, which is also a deoxy sugar at C6, it is present in the plant polysaccharides. This is the diagrammatic presentation of the deoxy sugars. हमने पीछे डिफाइन किया था कि कार्बन एटम नंबर 6 पे यहाँ रूटीन में अगर ये ग्लैक्टोज हो तो CH2OH होता है, यहाँ से H हमने निकाल दिया तो पीछे CH3 रह गया. सो इट फॉर्म्स डीऑक्सी शुगर. अगर ये ग्लैक्टोज में से निकलेगी ऑक्सीजन तो ये L फ्यूकोज बन जाएगी, और अगर मैनोज से निकलेगी तो रैमनोज रह जाएगा पीछे. सो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डीऑक्सी शुगर which is produced by removal of an oxygen atom from a monosaccharide. The fifth property of monosaccharide is formation of glycosidic bonds or the glycosides, which are formed by condensation between the hydroxyl group of the anomeric carbon of a monosaccharide and a second compound which may be a glycon or a monosaccharide or a aglycon, or which is, so when two monosaccharides are joined by a glycosidic linkage और एक मोनोसेक्राइड और एक कोई अदर कंपाउंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में फॉर्म मिल जाता है तो दे फॉर्म दी ग्लाइकोसाइड्स. हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस मॉड्यूल्स में कि रिंग फॉर्मेशन में एक एसिटाल ग्रुप है जो मिल जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर उसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ, तो उसका उसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ उसके OH ग्रुप के साथ मिलता है तो हेमी एसिटाल बनाता है, विच मीन के एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप आपस में इंटरकन्वर्टेबल है. जबकि जब ये दोनों दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो दो हेमी एसिटाल ऑलरेडी बने होते हैं या दो हेमिकीटाल्स ऑलरेडी बने होते हैं. जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो हेमिकीटाल की बजाय फुल कीटाल ग्रुप बन जाता है और एसिटाल या ये एसिटाल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. If the second group is a hydroxyl,
the O glycosidic linkage or oxygen in the glycosidic linkage or bond is formed and it is called a complete acetal link. जबकि पहले हमने डिफाइन किया था हेमी एसिटाल वो है जिसमें इंटर कन्वर्शन है बिटवीन अल्डिहाइड एंड अल्कोहल ग्रुप। जब इसमें एक और OH मिल गया जो दूसरे मोनोसेक्राइड से आ रहा है तो ये क्या बन गया, फुल एसिटाल और एसिटाल लिंकेज और O glycosidic bond. Because it results from a reaction between a hemiacetal group formed from an aldehyde group and an OH group, जो OH group है वो second monosaccharide से आ रहा है. This is the diagrammatic presentation which we have already discussed in our previous modules कि यहाँ पे एक OH अल्कोहल मिल रहा है इस एल्डिहाइड के साथ तो ये हेमी एसिटाल बन रहा है। इसका मतलब है कि ये अल्कोहल ग्रुप और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, इसलिए इसको हेमी मीन्स आधा आधा एसिटाल और आधा अल्कोहल रहता है। इसके साथ एक और हमने OH अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया तो ये फुल एसिटॉल बन गया। सिमिलर इज द कंडीशन with the ketones in which when an alcohol is added it will form first the hemiketal and then the ketol group. If the hemiacetal portion is glucose, the resulting compound is glucosides. If galactose, it is called galactosides. Glucosides क्या हैं? जिसमें multiple groups attached हैं ग्लूकोज के एज ए मल्टीपल सिंगल मोनोमर। तो इसी तरह ग्लैक्टोज के बहुत सारे ग्रुप्स अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में अटैच होंगे तो ये कहलाएगी ग्लाइकोसाइड। दिस इज अगेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वी कैन सी हियर कि यहाँ पे हेमी एसिटॉल जो हमने बोला था इंट्रामोलिकुलर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में बनता है। इसमें दूसरा अल्कोहल सेकंड ग्लूकोज से मिल गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। सेकंड अल्कोहल इसका इसके साथ मिल गया फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज का और सेकंड इसकी ये कार्बन एटम नंबर 1 है, ये कार्बन एटम नंबर 4 है। तो ये दो मोनोसेक्राइड्स और दो ग्लूकोज यूनिट्स मिलके आपस में और ये कंप्लीट एसिटॉल लिंकेज बन गई जिसमें वाटर यहाँ से निकल गया, एक H ये निकला और एक OH यहाँ से निकल गया। So this is the formation of a glycosidic bond.